Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know we are carrying on with the fourth chapter, geography, where we are talking about technological and institutional reforms. Students, in the last class, of course, this is the reforms that are happening in the field of agriculture. We have been talking about it in detail, and we came to know about the major reforms that have happened. यहाँ पे we have discussed that certain initiatives that were taken in the first 5-year plan was very much effective for the farmers in India. First 5-year plan, the changes that have happened, the initiatives that were taken by the government for land reforms. Another important thing that had happened, please try to understand, क्योंकि अब हमको ये समझना है कि a country where maximum of its population is depending upon agriculture. Agriculture के ऊपर the maximum population is dependent. So ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा. We need to take care of it that कोई भी प्रॉब्लम ना हो. There is no discrepancy at all. सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर वाले लोगों को ही देना पड़ेगा. Last class में what we have read, please understood, we have read about the laws of land reforms. बहुत तरीके के कानून बनाए गए. Actually, this is a topic on which questions are based and a lot of questions are asked. So you need to be very clear about all these topics. ये जो topic है इसमें आपको सारी चीजों के लिए बहुत clear होना बहुत जरूरी है. So I am just revising the points that we have done in the last class, where we are talking about the laws that are related to land reforms. बहुत सारे laws बने, लेकिन problem ये था laws बना तो देते हैं लेकिन उसको implement करना थोड़ा सा जो है वहां पे the government started facing problem. How to implement it? How to implement these laws? This is क्योंकि कानून बन जाता है ना, 10 लोग पैदा हो जाते हैं जो उस कानून को सबसे पहले तोड़ते हैं. People who start breaking that law. ठीक है. And lucky and funny thing that they say कि हाँ कानून तो बनता ही है तोड़ने के लिए. This is very wrong. कानून बना है तो किसी की भलाई के लिए बना है. गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव ले रही है, rather than helping the government, इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करना, this is was something wrong. तो major changes that had happened 1960s से 70s के बीच में, major changes happened in agriculture. बहुत तरीके का लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई एंड गवर्नमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट. 60s 70s के बीच का जो टाइम था ना, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी पीरियड. सम काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन फॉर विच agriculture would be known for is the green revolution and the white revolution. थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पता कर लीजिएगा. I am giving you a brief output. Green revolution where technology was involved on a very large scale. काफी सारा टेक्निकल तरीका यूज किया गया for all kinds of manufacturing and for all kinds of work that was being done. हर एक तरीके का जो काम हो रहा था उसमें technology was, I was talking about agriculture, the output that was there, whatever was being grown, उसमें mechanics was used, technology was used, money was invested,
काफी सारी स्टेट्स को बहुत फायदा हुआ, विथ स्पेशल रेफरेंस टू, पहले भी बताया है, पंजाब एंड हरियाणा, वेयर हाईली बेनिफिटेड। ठीक है, कितना ज्यादा फायदा हुआ होगा इन स्टेट्स को बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। टिल डेट द काइंड ऑफ आउटपुट दैट इज देयर इन पंजाब एंड हरियाणा, जितना उपज होती है, जितना आउटपुट होता है, ओके, वो नजर आता है। These states are very rich in the matters of money and in the matters of output, international trade, agriculture से related. इसके बाद the major year white revolution is related to milk production. दूध का उत्पाद बढ़ाया गया and this had lot of impact on the people in Gujarat. Amul, I have been giving the example, लेकिन this is there. काफी प्रोडक्शन बढ़ा और उससे काफी लोगों को फायदा हुआ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेर देयर, very good employment opportunities people have got and they are very happy with that. काफी लोगों को आराम हुआ, काफी ज्यादा they were benefited. अब आप समझो कि 1980s 90s में 1980s 90s lot of institutional changes happen. अब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में क्या क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में टेक्निकल रिफॉर्म्स के साथ क्रॉप इंश्योरेंस, ड्रॉट अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर and disease, Gramin Bank was established, cooperatives were established, loan facilities was given to the farmers. These are all included in the institutional reforms. मैं फिर बता रही हूँ, लास्ट क्लास में we have done it. ठीक है, अब इसमें आपको ये भी देना है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, PAIS, Personal Accident Insurance Scheme. Then you have some schemes introduced by government. ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं. It has benefited the farmers to a very high extent. And then farmers क्या होता है ना, कितनी बार they grow a good kind of crop, अच्छे से खेती की है, सारा काम किया है, फिर क्या होता है, there are some middlemen जो होते हैं, जैसे हाँ अपना हमको अनाज दे दो, हम आपको बहुत अच्छी कीमत देंगे, and they pay them 10 rupees, I'm just citing an example, and they go and sell the same product in the market for 30 rupees. प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बीच के लोग ले लेते हैं. सो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड MSP. आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हैं. A farmer can directly go and sell his products to the government. Government will pay that farmer on a very high price good, जिसमें कि कहीं से भी किसान को नुकसान नहीं होगा. ठीक है. Remunerate
for whatever he is giving, and procurement prices for important crops. Important crops बहुत सारा दाल है, सब्जियां हैं, चावल, गेहूं, all the crops are important. So for all these important crops, exploitation of farmers was checked by through various ways and means, and speculators, middlemen, यही जो बीच के लोग थे. Just now the example that I was giving. अब क्या हुआ इसमें, one example I'll be showing which is talking about the biggest institutional initiative that was taken, भूदान ग्रामदान. अब ये क्या था? What is this? Bhu, for bhumi, for land, this is a synonym. हिंदी में बोला जाए पर्यायवाची. हाँ, आप पढ़ते हैं हिंदी में तो आपको पता है पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और पर्यायवाची है. So this is the synonym for land, which is bhu. भू का जिन लोगों ने दान दिया, the people who have donated the land. Yes, this I will be showing it to you in the book itself, children. इसकी कहानी हल्का सा बता देती हूँ कि महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था. Because the kind of mindset that Mahatma Gandhi had, the same kind of mindset and the same kind of ideology Vinoba Bhave used to follow. तो गांधी जी उनको अपने बेटे की तरह मानते थे, भाई की तरह मानते थे. एंड दिस वाज अ बिग रेवोल्यूशन विच चेंज्ड द लाइफ ऑफ द फार्मर्स. गांव में क्या था ना, देयर वाज द काइंड ऑफ लैंड दैट वाज देयर इन अबंडेंस. बहुत ज्यादा जमीन थी. इस जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. इट इज रियली नीडेड दैट लैंड शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली, यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली. लेकिन कोई देखने वाला नहीं था. देयर वाज नोबडी हु कैन गाइड द फार्मर्स, हु कैन रियली टेल देम व्हाट टू डू, हाउ टू डू. फॉर दैट पर्पस द फार्मर्स ने कहा कि जैसे कि देयर वाज इन रशियन रेवोल्यूशन, देयर वाज देयर कि जाके जबरदस्ती जमींदार की, लैंडलॉर्ड्स की जमीन पे कब्जा करना. बट इट वाज नॉट एज सच. दान दे दिया. बिग लैंडलॉर्ड्स हु वर देयर, उनसे कहा गया कि ये जमीन आपकी है, लेकिन आप इसके ऊपर खेती तो कर नहीं रहे हैं. अल्टीमेटली द फार्मर्स आर देयर हु आर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, हु आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क ऑन दिस लैंड. So instead of just supporting the farmers को आपको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए. तो आप ये जो जमीन है आपकी सिर्फ ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी को अगर आप दे देंगे तो जिंदगी बन जाएगी. These kind of value based some points were there which was told to the farmer, told to the landlords, and in return landlords ने क्या किया, वो जमीन दान में दे दी. That land was given for दान, और इसी दान को सबसे बड़ा दान है, this दान is called as भूदान and ग्रामदान. एंड भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट था, किसने इनिशिएट किया था? इट वॉज इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे. This name is attached to this revolution. This is also called as a bloodless revolution. ठीक है, कोई भी इसमें मारपीट नहीं हुई. रेवोल्यूशन हैड हैपेंड. लैंडलॉर्ड्स ने अपने मन से वो सारी जमीन किसानों को बांट दी. This was something very encouraging that had happened for the farmers. बहुत बड़ी चीज थी. अब very important topic which we need to discuss in detail. I am starting it, children. Some points I will be giving you. Contribution of agriculture
एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है टू द नेशनल इकोनॉमी, टू द नेशनल इकोनॉमी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी इज रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को एंड आउटपुट। नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। आउटपुट क्या होगा इसका? हाउ द आउटपुट वुड बी डिसाइडेड। ठीक है, एग्रीकल्चर एज यू नो, आपको पता है सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव बीन डिस्कसिंग, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दो ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, दिस वी हैव रेड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर has been the backbone। आज ना टर्शियरी सेक्टर आया है भाई साहब, टुडे टर्शियरी सेक्टर हैज कम एंड टर्शियरी सेक्टर वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे टर्शियरी सेक्टर खाना नहीं मिलेगा कहां जाओगे। वेरी सिंपल मैटर बट वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शियरी सेक्टर कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन प्राइमरी को हटा देंगे तो टर्शियरी तो कहां चला जाएगा, उड़ जाएगा। All these people who are very, very proud of being highly educated, highly qualified and sitting in the big offices and the AC and doing the work, managing the economy. No, 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 no. This is all in vain. If the farmers stop growing the crop, वो जो आप सुबह दाल पी के खा के आ रहे हो, रात में दाल चाहिए रोटी के साथ, ठीक है, the vegetables that are there, सप्ताह में वीक में एक दिन सुबह जो आपके छोले भटूरे बन रहे हैं and all that, it is all because of the sector. That is what it has been the backbone of the Indian economy. Indian economy, ठीक है। एंड दो देखो जीडीपी में इसका शेयर कितना है, दो इट्स शेयर इन द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, दो इट्स शेयर इन जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। जीडीपी भाई पैसा उतना कमा के नहीं दे पा रहे हैं जितना पैसा टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है। द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर ऑफ कोर्स उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज सीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड 1951 ऑनवर्ड्स। about 52% of the 2010-11 का डेटा है, आपके उसमें हो सकता है कुछ और डेटा हो, you can check that data। 2010-11 about 50% of the total workforce was employed by the farm sector। आपके बुक में जो भी डेटा दिया हुआ है ना, whatever data is mentioned in your book, you can utilize that data and you can mention that data only। कोई जरूरी नहीं है कि जो डेटा मैं बता रही हूँ, फॉलो द डेटा दैट इज गिवन इन योर बुक। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है, सो आई गॉट ओल्ड डेटा, बट देन डेटा इज डेटा। अकॉर्डिंग टू 2010-11, ठीक है, 2010-11 का जो ट्रेंड रहा है, अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, 52% जितने भी लोग काम कर रहे हैं was employed by the farm sector। काम कहां मिल रहा है? कुछ काम नहीं है, खेती तो कर ही लेंगे,
लैंड तो है ही, गांव में जमीन है ही, वहां पे तो कहीं ना कहीं पे पीपल आर एम्प्लॉयड, फार्म सेक्टर। तो अब आप ये समझ लो, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस। मोर देन 50% of population is dependent on agriculture for sustenance। अपना गुजारा चलाने के लिए, सस्टेन तो करना है इन दिस वर्ल्ड, पीपल हैव टू एग्जिस्ट, पीपल हैव टू कैरी ऑन। तो जहां कहां भी है, द पीपल हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, दे आर ऑल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा एग्रीकल्चरल सेक्टर से नहीं आ रहा है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। The declining share of GDP, जितना भी whatever is the country's economy, we have already read about the calculation of GDP, gross domestic product, ठीक है, in GDP is a matter of serious concern। ठीक है, because any decline, please understand, because any decline and stagnation, if the economy is stagnant, रुक गया, ठहर गया, in agriculture will lead to decline in other sectors। ये जितना भी आई टोल्ड यू ना, सेकेंडरी टर्शरी जितना भी बोल लें, इन अदर स्फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम मिल जाएगा। देयर इज अ प्रॉपर ग्राफ, एक पूरा ग्राफ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। देयर इज अ कंप्लीट ग्राफ एंड दिस ग्राफ नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, दिस ग्राफ नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दिस ग्राफ नीड्स टू बी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। प्राइमरी आपको नहीं, मतलब कंट्रीज इकोनॉमी इफ इट्स डिक्लाइनिंग, समवेयर वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट देयर शुड नॉट बी any kind of a decline in the primary sector, that is the agricultural sector. It will affect the other spheres of the economy. पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जस्ट नाउ दैट आई गिव यू एन एग्जांपल, टर्शियरी सेक्टर माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना पैसा आ रहा है, कंट्री का जीडीपी हम देख रहे हैं, कंट्री का इकोनॉमी देख रहे हैं, वाओ सो नाइस, टर्शियरी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी। क्या मतलब है इसका? व्हाट डज दिस मीन? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। इस चीज को तो समझना बहुत जरूरी है। ओके, so declining share of agriculture in the GDP, of course it might be. Considering the importance of agriculture, agriculture is very important in India, and India mein the economy is resting on the agricultural system. So government of India has taken lot of efforts and they are trying to modernize agriculture. Government of India trying to modernize agriculture, बहुत जरूरी है ये modernization, because contribution of agriculture in the national economy,
country's economy, employment and output needs to be checked properly. Kaise? How government is doing it? Children, I'll be explaining it to you in the next class. Keep watching the video. What I need to discuss right now, I need to discuss the Bhudan and the Gramdan. Yes, that is also an important topic. Come, let's see. Okay, students. So just now that I had told you Bhudan, Gramdan, what is land donation? Actually, it is a donation. Dan is donation. And initiated by महात्मा गांधी. इन्होंने इसको इनिशिएट किया था. महात्मा गांधी respected विनोबा भावे a lot. एंड विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर कहते थे. that his I mean further all his ideas and his ideology would be propagated by Vinoba Bhave. And Satyagraha में भी Vinoba Bhave was all the time there with Mahatma Gandhi. So he was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swaraj. Votaries means the people who support. He was one of the persons who really supported Gandhi ji for Gram Swaraj. Gandhi ji हुआ ना martyrdom के बाद. Gandhi ji had, you know how he had passed away. So विनोबा भावे ना इन्होंने फिर पद यात्रा की. He started his yatra, his march to spread गांधी जी's message. ठीक है, गांधी जी का मैसेज स्प्रेड करने के लिए he had moved, he had gone from one place to the other place, and he wanted that everybody should follow Gandhi ji's ideology. And एक बार क्या है, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में ना, he was giving a lecture. तो some poor landless villagers they came. इन्होंने आके कहा कि some land for their economic की कुछ some please give us some land for our economic well-being. Economically they were very drained. So Vinoba Bhave he said कि कैसे कहाँ से ज़मीन दें. और विनोबा भावे was not a very rich person कि कहीं से भी ज़मीन खरीद के he will donate it. No, he said कि I'll be doing it, मैं कर दूँगा, मुझे आप कुछ समय दीजिए. Some land for their economic well-being they were asking. So विनोबा भावे immediately तो वो नहीं माने, लेकिन he said that he would be talking to the government of India. इंडिया की गवर्नमेंट से बात करेंगे regarding provision of land के लिए. एंड इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग. बोले लैंड तो दे देंगे, लेकिन लैंड का मतलब ये नहीं कि लैंड लेके आप लोग अलग अलग अपना डिवाइड कर लें. इट हैज़ टू बी इन अ कोऑपरेटिव मैनर. सारे लोग मिल के उस लैंड का इस्तेमाल करेंगे, कोऑपरेटिव. सो श्री रामचंद्र, ये व्हेन दिस पर्सन वाज टेलिंग हिम, सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी ही स्टूड अप, खड़े हो गए वो, और उन्होंने कहा कि आई एम गिविंग 80 एकर्स ऑफ लैंड. 80 एकर्स ऑफ लैंड ही सेट की डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फार्मर्स को. 80 लैंडलेस विलेजर्स, ये उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़मीन का दान करता हूँ. रामचंद्र रेड्डी, सच अ ग्रेट पर्सन हु थॉट अबाउट इट कि अगर किसानों का भला करना है तो उन्होंने तुरंत अपना लैंड जो है वो डोनेट कर दिया. कितनी बड़ी बात है. एंड कुछ जमींदार्स भी थे, दे वर ओनर्स ऑफ विलेजेस, पास पूरे का पूरा विलेज था. ठीक है. एंड लैंडलेस लेबरर्स को उन्होंने कहा कि टेक दैट विलेज ऑल्सो. वो गांव आपका है, आप लोग उस गांव में रहिए, अपने हिसाब से खेती करिए. तो क्या हुआ कि लैंड जो दिया रामचंद्र रेड्डी ने, दैट वाज कॉल्ड एज भूदान. एंड द जमींदार्स, ओनर्स ऑफ द विलेजेस, दे गेव द ग्राम, गांव का गांव दे दिया दान में. दैट वाज कॉल्ड एज ग्राम दान. तो क्या हुआ, लैंड ओनर्स बहुत सारे थे, मेनी लैंड ओनर्स वेर देयर. दे चोज कि उन्होंने कहा कि पुअर फैमिलीज़ को दे वुड बी गिविंग देयर लैंड, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट था. लैंड सीलिंग एक्ट मीन्स गवर्नमेंट हैड सेड दैट इट वुड बी टेकिंग अवे ऑल द लैंड.
तो सील हो जाएगा, उसके बाद दे कैनॉट यूज़ दैट लैंड. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग इट to the government, where government is doing the land in its own way, in its own manner, they thought कि ये गांव वालों को क्यों ना दे दिया जाए ताकि उनका भला हो, उनकी ज़िंदगी चले और उनकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. इमेजिन सच अ बिग थिंग, सच अ वेल थॉट प्लान, gram dan and bhudan, isn't it? So this is what I wanted to explain to you children. Here we come to the end of today's video. We'll be meeting in the next video. Till then children, thank you so much and all the best to you.